Okay, now based on this we have interquartile range. So what is interquartile range? Difference between upper and lower quartile is known as interquartile range. So we have total three quartiles. So this is Q1 is the lower quartile, Q3 is the upper quartile, and difference between this is nothing but the interquartile range. So how to calculate it? Upper quartile minus lower quartile, that is Q3 minus Q1. तो यहाँ पे हमारा Q3 है 92.5 and our Q1 is 62.5. Okay, so if we just subtract them we get 30. So interquartile range is 30. Okay, so this gives you that in there is around 30 difference of 30 points between each of your quartile, right? So this is called as Q3 minus Q1, that is interquartile range. आया समझ में? Okay, next we are going to see the percentile. So percentile is one type of quantile. Okay, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वांटाइल ये टर्म हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते. क्वांटाइल के डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वे से हम यूज़ करते हैं, जैसे क्वार्टाइल जो हमने अभी देखा, एंड नेक्स्ट इज दिस परसेंटाइल. ओके, सो क्वार्टाइल में हम हमारे डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? यस, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम डेटा को क्वार्टाइल में? 4 पार्ट्स. Okay, so percentile is another type of quantile that divided the data into 100 equal parts. So this percentile or centile is a measure used in statistics indicating the value below which a given percent of observation in group of observation fall. मतलब when we say 20% or of observations or 20 percentile का meaning क्या होता है कि it is the value बिलो विच 20% ऑफ ऑब्जर्वेशंस में बी फाउंड. मतलब आपके डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, तो ये जो 20 परसेंटाइल जो पॉइंट होगा वो क्या बताएगा कि इस पॉइंट के नीचे आपके 20% ऑफ ऑब्जर्वेशन है. गेटिंग इट? मतलब ये सपोज आपका लाइन है, इसके ऊपर आपके पॉइंट्स है, दीज आर योर पॉइंट्स. तो एक कहीं पे तो आपका ये सपोज 20 परसेंटाइल वाला पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट के नीचे हमारे 20% ऑब्जर्वेशन है, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके डेटा में लेट से 100 है, ठीक है, तो 20 परसेंटाइल मतलब वो ऐसा पॉइंट जिसके नीचे आपके 20 ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं. गेटिंग इट? ऐसा पॉइंट जिसके नीचे आपके उतने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑब्जर्वेशंस है, डेटा पॉइंट्स है. ठीक है, यहाँ पे आपको किसी वैल्यू का, जैसे आप एग्जाम के मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं, दैट परसेंटेज इज डिफरेंट. उसमें आप क्या करते हो, जैसे आपको 100 में से 85 मार्क्स है, तो यू कैन डायरेक्टली से आई हैव गॉट 85%. दिस इज परसेंटेज. ओके, सो दिस परसेंटेज इज डिफरेंट देन दिस परसेंटाइल. परसेंटाइल मतलब आपको लेट से कुछ डेटा दिया गया है एंड उस डेटा में जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है आपके पास, वो अगर हमने 100 कंसिडर कर लिए, ठीक है, तो कोई भी परसेंट आप लो, जैसे आपने अगर 50% लिया, ठीक है, तो 50 परसेंटाइल मतलब क्या? 50 परसेंटाइल एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे आपके हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई करते हैं. यू विल फाउंड योर हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है लाइन के ऊपर जिसके नीचे आपको आपके 50% ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर 50% ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे. गॉट इट? So this percentile is used to display position or rank of any data point in the entire data set. Percentile is used to display position or rank of any data point in your entire data set. This is called
called as percentile. Okay, any doubt? Okay, now next we are going to see 5 number summary. Okay, so for understanding 5 number summary, you should be clear with the concept of quartile. Okay, so what is quartile? Can anyone tell? क्या होता है quartile? क्या करता है quartile basically? Yes, quartile will divide your data into how many groups? 4 groups, right? For getting 4 groups, you need 3 points, right? Each point is called as one quartile, जैसे Q1, Q2 and Q3. Now, what is 5 number summary? It consists of minimum, that is the smallest data value, then Q1, that is first quartile, median or Q2, and Q3, that is third quartile, and fifth value is maximum, that is your largest data value. Okay, so these 5 points give a quick overview of data distribution. So along with these 3 quartile, what we have added here? Minimum and maximum. So this minimum we will take from our data set, that is the minimum data value, and this maximum also we are going to take from our data set, that is maximum data value, right? So set of all these 5 points is called as 5 number summary. ठीक है? Next we are going to see the box plot. So box plots are visual tools that incorporate the 5 number summary and provide a graphical depiction of data distribution. Okay, ये box plot किसके लिए यूज होता है? Box plot आपको 5 number summary दिखाता है, विजुअलाइज करता है. ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था. ओके, बॉक्स प्लॉट ऐसे होता है. लेट मी ड्रॉ हियर. इसमें ऐसे बॉक्सेस होते हैं और इनके ऊपर ऐसे लाइंस होते हैं. ये जो बॉक्सेस होते हैं इनके अलग अलग हाइट्स होते हैं. हर एक बॉक्स को बीच में एक लाइन होती है और साइड में ऊपर और नीचे ऐसे 2 डैश लाइन होते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स प्लॉट. मैं इसका एक सैंपल इसमें ऐड कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए. अभी के लिए फ्रॉम दिस फिगर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो नाउ विल ट्राई टू इंटरप्रेट दिस कि ये बॉक्स क्या होता है, लाइन क्या होता है और ये बाजू वाली जो लाइंस होती है वो क्या होती है. ठीक है, तो बॉक्स, द सेंट्रल बॉक्स स्पैन्स फ्रॉम Q1 to Q3. जो सेंट्रल बॉक्स है वो होता है फ्रॉम Q1 to Q3. ओके, देन ये जो मीडियन, हर एक बॉक्स में आपको ये लाइन दिखती है, तो ये लाइन क्या होती है? इट इज द लाइन विथ बॉक्स मार्क्स द मीडियन, दैट इज Q2. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका Q3 होता है, यहाँ पे आप Q1 होता है और ये जो सेंट्रल लाइन है वो होती है Q2. ओके, नाउ ये विस्कर्स क्या होते हैं कि विस्कर्स आर द लाइंस. विस्कर्स मतलब ये जो डैश लाइन आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज विस्कर्स. So these are the lines extending from the box to the smallest and largest values within 1.5 times the IQR from the quartile. ये जो लाइन है ये क्या है?
1.5 इंटू आई क्यू आर मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? Q3 minus Q1. Okay, so this is interquartile range. तो interquartile range का जितना भी वैल्यू आएगा, तो ये जो यहाँ से उतनी ऊपर आपको ये डैश लाइन दिखेगी उसकी लेंथ, और उतनी ही नीचे आपको दिखेगी। ठीक है, तो इतनी होती है विस्कर्स की लेंथ। ओके, एंड देन समटाइम्स ये प्लॉट जब आप करते हो तो आपको इसके ऊपर नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे, दीज आर कॉल्ड एज आउटलायर्स। Okay, so outliers are individual points plotted outside the whisker. जो विस्कर के भी बाहर अगर आपके डेटा सेट के कुछ पॉइंट्स जाते हो तो उनको कहते हैं आउटलायर्स, और वो इंडिविजुअली ऐसे प्लॉट होते हैं। जब आप बॉक्स प्लॉट करते हो तो उसमें आउटलायर्स आपको दिखते हैं अगर आपके डेटा सेट में वो है तो। ठीक है, Yes, ma'am. एनी डाउट इन बॉक्स प्लॉट? No, ma'am. Okay. Now next we are going to see variance and standard deviation. Okay, so these are very essential statistical measures used to quantify the dispersion or spread of the data points. मतलब आपका डेटा कितना स्प्रेड हुआ है उसका क्वांटिटी, उसको क्वांटिफाई करने के लिए, या कितने अमाउंट में आपका डेटा स्प्रेड है उसके लिए जो मेजर है दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो इसका इनके कुछ फॉर्मूलाज है, तो उसके पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। वेरिएंस मेजर्स द एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच नंबर फ्रॉम द मीन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने इसके पहले जो भी टर्म्स देखे हैं वो हम बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज में, राइट। तो अगर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मीन पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको मीन पता है तो ही आप वेरिएंस निकाल सकते हो। मीन क्या होता है किसी भी डेटा का? मीन इज नथिंग बट द एवरेज, राइट। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज। वो कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स और टोटल नंबर्स इन योर डेटा सेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मीन। नाउ व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज average squared deviation of each number from the mean of the data set. Okay, now मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हायर वेरिएंस इंडिकेट दैट डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट मोर वाइडली। जब आपका वेरिएंस ज्यादा आता है मतलब आपके डेटा पॉइंट्स वाइडली स्प्रेड है। वाइडली स्प्रेड मतलब सी, लेट्स से ये आपका प्लॉट है, इस पे जब भी आप डेटा पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करते हो तो आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स आपके मिलेंगे। ठीक है, तो जब आपका वेरिएंस हाइयर आता है मतलब ऐसे वाइड रेंज में आपके डेटा पॉइंट्स स्प्रेड है। ठीक है, जब आपका वेरिएंस कम आता है तो थोड़े ही एरिया में जैसे आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे स्प्रेड है। ठीक है, तो हाइयर वेरिएंस इंडिकेट दैट डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट मोर वाइडली फ्रॉम द मीन। ओके, तो ये किसके कंपैरिजन में वाइड होता है कि ये जो डेटा है इसका कहीं ना कहीं पे तो आपका मीन होगा। जैसे ये आपका डेटा है, राइट, इसका यहाँ सेंटर में कहीं पे तो मीन होगा, तो मीन से जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है वो बहुत दूर है, दैट व्हेन योर वेरिएंस इज हाइयर, राइट। अगर आपका वेरिएंस कम है तो आपके जो डेटा पॉइंट्स है वो ज्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं है आपके मीन से। मीन जहाँ पे आपका मीन का पॉइंट है उसके नजदीक ही आपको आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल जाता है। दिस इज when low variance is lower. Okay, and now what is standard deviation? See here variance हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, दिस इज द सिंबल ऑफ सिग्मा। तो वेरिएंस हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस and it provides a measure of spread in same units as the data.
ओके, तो डेटा का जो आपका यूनिट है, ये जो वेरिएंस है ये आपको स्क्वायर यूनिट में ये मेजर ऑफ स्प्रेड देता है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सेम यूनिट में देगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी तो हाउ टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो लेट्स से आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, दिस इज अवर डेटा पॉइंट 70, 80, then 85, 90 and 95. Okay, this is the data we have given. So the first step is to calculate the mean. How to calculate mean? Sum of numbers divided by total numbers, right? So we have sum here divided by हमारे पास 5 नंबर्स है, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला मीन 84, right? Now next step is to calculate deviation from the mean. ठीक है, deviation from mean means ये जो हमारा मीन है, हर एक नंबर से हम ये मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट लेंगे 70 माइनस 84, देन 80 माइनस 84, 85 माइनस 84, 90 माइनस 84 एंड 95 माइनस 84। ठीक है, और ये जो हमें नंबर्स मिलेंगे इनको हम स्क्वायर करेंगे। जो भी हमें ये डेविएशंस मिले हैं इनका हम स्क्वायर लेंगे। सो -14 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, अकॉर्डिंगली वी विल टेक द स्क्वायर। और ये जो नंबर्स हमें स्क्वायरिंग के बाद मिलेंगे इनका हम एवरेज निकालेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस। आया समझ में? सबसे पहला स्टेप मीन, राइट, देन डेविएशन फ्रॉम मीन, mean, then deviation from mean. This we are doing for each point, right? For each point we will calculate deviation from mean, then whatever values you will get you have to square them। ठीक है, और स्क्वायर के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसका वापस आपको मीन निकालना है, एंड दिस मीन इज नथिंग बट योर वेरिएंस। गॉट इट? यस मैम। तो सपोज लेट से आपको आपके गाड़ी, अलग अलग गाड़ी के स्पीड का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेरिएंस देगा, ये वेरिएंस का जो वैल्यू है 74, ये जैसे हमारे डेटा में है ये 70, सॉरी ये 70, 80, ये इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर आवर, राइट। जब आप वेरिएंस निकालोगे तो ये जो आया आपको, ये इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वैल्यू उसका आगे यूनिट क्या होगा? मीटर। ओके, इसलिए वेरिएंस से ज्यादा स्टैटिस्टिक में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, बिकॉज इट विल गिव यू मेजर ऑफ स्प्रेड इन सेम यूनिट्स एज योर डेटा। जो आपके डेटा का यूनिट है उसी यूनिट में ये आपको मेजर ऑफ स्प्रेड देता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिंपली आपको वेरिएंस का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका स्क्वायर रूट। ओके, तो उसका नोटेशन भी वैसा ही है, वेरिएंस का है सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन का है सिग्मा। और कैसे निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 74, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 8.6। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में अभी तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले मीन, सॉरी, इसमें हमने देखा क्वांटाइल, देन क्वार्टाइल, उसके बाद परसेंटाइल, देन इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बाद हमने देखा 5 summary plot, then we have seen box plot, after that variance and standard deviation. Any doubt in this? We have completed with this
topic, understanding measures of dispersion. एनी डाउट इन दिस? बिकॉज अगर आपको कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक हम देखेंगे वो ये क्वांटाइल क्वार्टाइल के बेसिस पे ही है, तो आपको सबसे पहले ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनका ही विजुअलाइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज ग्राफिक डिस्प्लेज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो जो भी हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन देखा है डेटा का, वो हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, उसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, so for that purpose we have quantile plots, then quantile plots, this is also called as QQ plot, then we have histogram and scatter plot, right? तो इनमें से मे भी आपने histogram और scatter plot सुना होगा, लेकिन this quantile plot and quantile plot में is new for you. So these we are going to see. ठीक है, so in this first three of these show univariate distribution. ओके, तो ये जो फर्स्ट थ्री है, क्वांटाइल प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट एंड हिस्टोग्राम, ये यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, मतलब इनमें हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट या आपके डेटा का एक ही फीचर यूज करेंगे। ओके, और ये जो स्कैटर प्लॉट है ये है बायवेरिएट डेटा। ओके, बायवेरिएट मतलब इट इन्वॉल्व टू एट्रीब्यूट्स। ओके, आई होप अभी आपको एट्रीब्यूट में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज रिवाइज करो। मैंने रिकॉर्डिंग्स भी ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो यू कैन रेफर दोज रिकॉर्डिंग्स। ओके, सो दिस फर्स्ट थ्री शोज यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ही एट्रीब्यूट को विजुअलाइज करते हैं, और ये जो स्कैटर प्लॉट है इनमें हम दो अलग अलग एट्रीब्यूट लेके उनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहला है क्वांटाइल प्लॉट। ओके, सो व्हाट इज क्वांटाइल प्लॉट? इट इज ग्राफिकल टूल यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवेरिएट डेटा सेट। ओके, जस्ट हमने देखा कि क्यों क्वांटाइल प्लॉट जो होता है वो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन देता है। So what is use of it? It helps in understanding overall behavior of data. Okay, तो उसका mean कहाँ है, how it is spread, if there are any outliers present in the data, this all information we can get from quantile plot. Okay, now how to plot this quantile plot, that we'll see. First you have to sort your data. The very first step to plot this quantile plot is to sort your data in ascending order. Okay, whatever data you have, first you have to sort it, then after that we will calculate the quantiles. So this is the formula. See, for each data point xi we have to calculate this quantile fi. जितने भी आपके डेटा में डेटा पॉइंट्स है, उस हर एक डेटा पॉइंट के लिए आपको एक क्वांटाइल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस f of I, व्हाट इज दिस क्वांटाइल, विच इज फ्रैक्शन ऑफ डेटा पॉइंट बिलो xi। हमने देखा था कि क्वांटाइल मतलब क्वांटाइल विच विल डिवाइड योर डेटा पॉइंट्स इनटू इक्वल साइज ग्रुप। तो अभी हमें ये डेटा डिवाइड करना है कितने ग्रुप में, नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। ओके, तो हर एक डेटा पॉइंट के लिए आपको ये एफ आई फाइंड आउट करना है। एफ आई मीन्स फ्रैक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स बिलो एक्स आई। ओके, और ये एफ आई कैलकुलेट करने के लिए this formula is used, fi is equal to I minus 0.5 divided by n. So here I is what, rank of data point. तो rank मतलब हमने ये जो डेटा पॉइंट्स है ऑलरेडी सॉर्ट करके लिए हैं, तो ये 1 2 अप टू n, ये जो है दिस इज रैंक ऑफ द डेटा पॉइंट, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है आपके डेटा सेट का, या सेकेंड पॉइंट है, या थर्ड पॉइंट है, या 10th पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज रैंक। ओके, तो रैंक से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5, और उसको डिवाइड करेंगे n से, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ओके, और ये
fi जो हमें मिलेगा, we will then plot the data. So plot each data point xi against its corresponding quantile fi. तो all xi और fi जो हमें मिलेंगे इनको हम प्लॉट करेंगे, राइट। तो अगर आपको ग्राफ पे कुछ पॉइंट प्लॉट करना है तो आपको दो उसके कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट एक तो वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका डेटा पॉइंट और वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ वाई, जो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ विथ वन एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। So this is our data 55, 60 up to 99. It is already in sorted order. Okay. So we have sorted the data. The next step is to calculate quantile. Okay. तो क्वांटाइल कैसे कैलकुलेट करना है? F1 सबसे पहले F1 क्या होगा? इसका रैंक क्या है? फर्स्ट, राइट, माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आया 0.05। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा प्लॉट करने के लिए? 55 एंड 0.05। देन सेकेंड पॉइंट आपका होगा 60 और उसका एफ आई, दैट मीन्स F2। ये कैसे कैलकुलेट करना है? रैंक दैट इज 2 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ गया 0.15, राइट। वैसे ही थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा 62, ये तो डेटा पॉइंट है हमारा 62 और उसका करस्पॉन्डिंग एफ आई, तो एफ आई F3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आया आपका 0.25। ठीक है, ये जो आया आपका 0.25 पे, दिस इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। गेटिंग इट? 0.25 जो आया आपका इसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। जो हमने देखा क्वार्टाइल दैट डिवाइड आवर डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये 0.25 पे जो भी आपका पॉइंट आएगा दिस इज कॉल्ड एज Q1 ऑफ योर डेटा। ऐसे ही आपको 0.50 पे एक मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज Q2 और ऐसे ही आपको एक 0.75 मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज Q3। ओके, और ऐसे हम एंड तक जाएंगे F10 तक, तो 10 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.95। तो आपका लास्ट डेटा पॉइंट होगा 99,0.95। ओके, तो ये ऐसे हमें 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 10 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पॉइंट्स के। वी विल प्लॉट दिस ऑल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ओके, लाइक दिस। गॉट इट? 50, ये 55 देन 0.05 टिल 99 0.95, ये हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था, ये जो थर्ड पॉइंट था 0.25 पे, ये है Q1। देन सेकेंड पॉइंट 50 पे मिलेगा आपको, लेकिन 50 वाला पॉइंट में भी आपके लाइन पे नहीं है, वो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका मीडियन। और ये जो 0.75 वाला पॉइंट है वो दिस इज कॉल्ड एज Q3। ओके, और ये आपका क्वांटाइल प्लॉट। एनी डाउट इन क्वांटाइल प्लॉट? Have you understood the quantile plot? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्वांटाइल प्लॉट के बाद नेक्स्ट प्लॉट है क्यू क्यू प्लॉट। ओके, so this QQ plot is nothing but the quantile plot. Okay, अगर आप ये क्वांटाइल प्लॉट में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारे डेटा वैल्यूज एंड वाई एक्सिस पे है हमारे क्वांटाइल्स, मतलब एफ आई, राइट। ये है हमारे एक्स आई एंड ये है हमारे एफ आई। ठीक है, नाउ ये जो क्यू क्यू प्लॉट है इसमें
इसमें हम कंपेयर करते हैं क्वांटाइल्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको दो डेटा सेट दिए गए हैं। यहाँ पे जो क्वांटाइल प्लॉट था उसमें हमारे पास एक ही डेटा सेट था ये, ठीक है। वैसे क्यू क्यू प्लॉट में टू डेटा सेट्स विल बी गिवन, ठीक है। और वहां पे हम कंपेयर करेंगे वो टू डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इफ डेटा सेट फॉलोज अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और कंपेयरिंग टू डेटा सेट टू सी दे कम फ्रॉम सेम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम क्यू क्यू प्लॉट में हम क्या करते हैं कि अगर आपको दो डेटा सेट दिए गए हैं तो वो दो डेटा सेट को कंपेयर करते हैं कि ये दोनों डेटा सेट सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल सी दैट। सो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट बोथ द डेटा सेट। जो भी दो डेटा सेट्स आपके पास है उनको सबसे पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद उनके क्वांटाइल्स फाइंड आउट करने हैं, एंड देन प्लॉट द क्वांटाइल ऑफ फर्स्ट डेटा सेट अगेंस्ट क्वांटाइल्स ऑफ सेकेंड डेटा सेट। यहाँ पे हम प्लॉट क्या करने वाले हैं? पहले क्वांटाइल सेट में हमने क्या प्लॉट किया था? एक्स आई एंड एफ आई, राइट। अभी यहाँ पे हम प्लॉट क्या करेंगे? एफ आई ऑफ फर्स्ट डेटा सेट विथ एफ आई ऑफ सेकेंड डेटा सेट, ये प्लॉट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दोनों भी सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं या अलग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। Okay, just wait for a minute. I will add that QQ plots example from book. QQ प्लॉट का डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगी, लेकिन आपको समझ में आए QQ प्लॉट कैसे प्लॉट करना है। ये क्वांटाइल प्लॉट जैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे जो डेटा वैल्यूज लिए थे इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी क्वांटाइल्स ही आएंगे, लेकिन क्यू क्यू प्लॉट में हमारे पास दो डेटा सेट होते हैं, तो यहाँ पे क्वांटाइल्स फ्रॉम डेटा सेट 1 आएंगे और वाई एक्सिस पे आएंगे क्वांटाइल्स फ्रॉम डेटा सेट 2, ओके। तो वो दोनों क्वांटाइल्स हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। गॉट इट? यस और नो? यस मैम। ओके। या तो फिर अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे जैसे क्यू प्लॉट में या क्वांटाइल प्लॉट में हमने प्लॉट किया, वैसे ही दो लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और सेकेंड डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। तो ये जो एक लाइन आया उसके जगह पे आपके दो लाइन्स आएंगे, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन होगा वहाँ पे, ठीक है। The next chart we are going to see is histogram. मे भी ऐसे टाइप के चार्ट आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम क्या देता है, क्या करता है आपको? इट शोज फ्रीक्वेंसी, कि जो भी आपके डेटा सेट में आइटम्स है उनकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम इज graphical representation of data where data is grouped into continuous number of ranges, okay। तो हिस्टोग्राम यूज होता है ओनली जब आपके पास नंबर्स हो, तो ये आप प्लॉट कर सकते हो, एंड ईच रेंज करस्पॉन्ड टू अ वर्टिकल बार। Then horizontal axis will display the number range and vertical axis will display amount of data that is present in each range, okay। तो अगर आपके पास नंबर है तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट नंबर रेंज ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपके पास लेबल है तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस लेबल्स ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है ये क्या बताएगा? उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्रिकेट कितनी बार आया है डेटा सेट में, फुटबॉल कितनी बार आया है, मतलब आपके पास कुछ स्टूडेंट का डेटा है, कुछ क्लास का डेटा है, जिसमें दिया गया है कि ये पर्टिकुलर एक 1 रोल नंबर वाला स्टूडेंट खेलता है क्रिकेट, 2 नंबर का स्टूडेंट भी क्रिकेट खेलता है, 3 नंबर का स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है, ऐसे आपके पास
50 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। तो उसका हिस्टोग्राम कैसे आएगा, नंबर ऑफ गेम्स आएंगे एक्स एक्सिस पे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस, नंबर ऑफ ऑल द गेम्स ऑन एक्स एक्सिस। और आप कैलकुलेट करोगे कि ये पूरे डेटा सेट में क्रिकेट कितनी बार आया है, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट आया हमारा 27 टाइम्स, फुटबॉल आया 36 टाइम्स, बास्केटबॉल आया है लेट्स से 18 टाइम्स और टेनिस आया 12 टाइम्स, ओके। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, 27 प्लस 36 प्लस 18 प्लस 12, ओके। और फिर ये जो सी 27 मतलब क्रिकेट 27, हम यहाँ पे उसका हाइट डिसाइड करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंट इन ईच रेंज and the number range depend upon data that is being used, okay। तो ये आपका इसकी हाइट कितनी होगी, that will depend upon number of time that particular range has appeared in your data, okay। तो एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, जैसे अगर कुछ एरिया का सर्वे किया जाए कि वहाँ पे कितने ट्रीज है और उनकी हाइट कितनी है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हमने ये रेंज में डिवाइड किया डेटा, जैसे 60 to 75, देन सॉरी यहाँ पे 60 to 65, देन 66 to 70, 71 to 75, ऐसे हमने डिवाइड किया रेंज में, और हमें 60 to 65 में 3 मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 to 65 का हाइट है 3, देन 65 to 70, 66 to 70 में भी हमारे पास 3 ही ट्रीज मिले। लाइकवाइज वी कैन प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, ओके। और जो हमें प्लॉट मिलता है उसके बाद दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम, गॉट इट। एनी डाउट इन No, हिस्टोग्राम? ma'am. ओके, मैम यस। में जो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, लेकिन मोड क्या होता है, मोड इज यूअर, मोड में क्या होता है आपका, जैसे मीन एक वैल्यू होता है वैसे ही आपका मीडियन एक वैल्यू है और मोड एक वैल्यू है। मोड क्या है कि जैसे इस डेटा का आप मोड निकाल सकते हो, इस डेटा का मोड क्या है 10, मतलब 76 के टू 80 के रेंज में आपको सबसे ज्यादा ट्रीज मिले हैं, ठीक है। लेकिन डेटा आपका ऐसे जब हम मोड निकालते हैं तो उसमें कैसे होता है कि कुछ डेटा दिया हुआ होता है और उसमें हम हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि आपको डेटा दिया गया है ऐसे क्रिकेट क्रिकेट फुटबॉल, और इसमें आप क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फुटबॉल की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो होता है हमारे डेटा का मोड, राइट। लेकिन यस मैम। हिस्टोग्राम आपको आपके डेटा का हर एक जो रेंज है उसका रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। आप कुछ डेटा के लिए, जैसे ये प्रीवियस स्लाइड में डेटा था, इसके लिए आप हिस्टोग्राम से उसका मोड भी निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो फुटबॉल आपके डेटा का मोड हो गया, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम से हम आपके ओवरऑल जो डेटा है वो सारा ही यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। एनी डाउट? तो अभी तक हमने जो ये रिप्रेजेंटेशन देखे, जैसे हिस्टोग्राम, देन क्यू क्यू प्लॉट और क्वांटाइल प्लॉट, ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ही एट्रीब्यूट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हाइट और रेंज कंसिडर किया, जैसे क्वांटाइल में हमने देखा कि हमने एक ही एट्रीब्यूट यूज किया, क्यू क्यू प्लॉट में भी एक ही एट्रीब्यूट यूज होता है। वैसे जो नेक्स्ट विजुअलाइजेशन हम देखेंगे, नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे दैट इज स्कैटर प्लॉट, ओके। ये सबसे अलग है बिकॉज इट विल यूज टू एट्रीब्यूट्स, ओके। so scatter plot is one of the most effective graphical method to determine if there appears to be a relationship pattern or trend between two numeric attribute, okay। so ये क्या करेगा,
टू एट्रीब्यूट्स यूज करेगा, ये दोनों भी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ओके, और जब हम वो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि वो दो जो एट्रीब्यूट है उनमें कुछ रिलेशनशिप, पैटर्न या ट्रेंड एग्जिस्ट है या नहीं। ओके, स्कैटर प्लॉट प्लॉट करना इज वेरी सिंपल। स्कैटर प्लॉट के लिए जो भी दो एट्रीब्यूट आप कंसिडर कर रहे हो वो दोनों एट्रीब्यूट को एज अ पेयर कंसिडर करके directly you have to plot it on a graph. Okay, so to construct scatter plot, each pair of value is treated as pair of coordinate and then plotted as a point in the plane. ठीक है, so this scatter plot is very useful method for providing first look at bivariate data. Bivariate means where it is using two variables or two attributes. This is why it is called as bivariate data. ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्कैटर प्लॉट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव टू एट्रीब्यूट्स, एज ऑफ द चाइल्ड एंड हाइट। ओके, तो एज ऑफ द चाइल्ड इज 3, देन हाइट was 2.3, age of the child 4. Accordingly we have एज ऑफ द चाइल्ड 10 एंड हाइट 4.5। तो ये प्लॉट कैसे करने हैं, डायरेक्टली ये जो पेयर है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोऑर्डिनेट फॉर ईच पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होगा 3 एंड 2.3, देन सेकंड पॉइंट होगा 4 एंड 2.7, थर्ड पॉइंट होगा 5, 3.1, और ऐसे यहाँ पे ये प्लॉट किया है हमने। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें हाइट में एज ऑफ चाइल्ड और हाइट में कुछ रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, जैसे ही एज बढ़ रहा है वैसे हाइट भी उसका इंक्रीज हो रहा है। राइट, यहाँ कहीं पे भी आपको अलग कुछ वैल्यू नहीं दिख रही है। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि सॉरी, एज is directly proportional to height. Okay, so this type of correlation this scatter plot can show. This is called as positive correlation. स्कैटर प्लॉट का यूज क्या है, वो कोरिलेशन फाइंड आउट करता है डेटा में। तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। कभी कभी आपको डेटा में ऐसे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी कोरिलेशन दिखेगा एंड वी कॉल इट एज अ निगेटिव कोरिलेशन। ओके, लेकिन ये आपको समझ में कैसे आएगा, जब आप स्कैटर प्लॉट जो भी आपके पास डेटा पॉइंट है उसका स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उस वो जो डेटा है आपके पास उसमें कुछ कोरिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव। अगर ऐसे कोई भी नहीं है, मतलब बीच में आपके पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, मतलब आपको कोई कोरिलेशन नहीं दिखा रहा है, तो देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, बट दिस यू कैन इन्फर बाय यूजिंग स्कैटर। क्लियर, सी यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है। पॉजिटिव कोरिलेशन means your points will go in upward direction. When we have negative correlation, your points will go in downward direction, and when your points are scattered in random fashion, it is called as no correlation. Got it?